Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the chapter that is the work, power and energy. Alright, तो हम लोगों ने work के बारे में सीखा, power के बारे में सीखा, energy के बारे में सीखा. ठीक है, today we are going to revise it all and then in the next lecture we are going to do some questions. Alright, so let's get started over here. ठीक है, हम लोग ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, दीज लेक्चर्स आर फ्री फॉर एवरीबडी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट स्टडी फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एज these video lectures will help you in your school examination as well as the Olympiads level. So अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इन लेक्चर्स को देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड्स लाइक NTSC, NSCJS तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू. यू नीड टू वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल्सो share it with everybody. Alright, so that is also the thing you need to do. Now see, if you want DBP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write this code TTB009 in the search box of the Telegram app. When you do so, तो आपको यहाँ पर drop down list मिल जाएगी. You can join the class 9 channel and you can access all the things over there. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot, as this team is putting so much effort for you all and we are providing so much good quality content to you so that you can study these at your home, right? And you can gain access to the knowledge you need to crack the examination just like the Olympiads or the school examination, right? That is why you should watch these video lectures. And the next thing is we have also prepared some packages for you all. So ye video lectures are free for everybody, but you can also get the packages over there to our website, that is www.talkingtextbooks.in. So वहाँ पर जब आप जाएंगे you will be getting two type of packages over there, the full package and the test series. Full package के अंदर you will be getting all the necessary things you need to achieve your goals, that is the study material, video classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. These are the things you need to know and you need to have to get the good marks or the good, you can say, rank or the position in your class. Alright, the thing is कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही systematically choose की गई हैं, right? Because homework submission is important, very important. जो बच्चे homework नहीं करेंगे तो फिर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. That is why it is included, right? Every single thing included here is very, very, very important. Alright, फिर आते हैं टेस्ट सीरीज पे. टेस्ट सीरीज पे you are going to get the periodic test papers, bi-weekly quizzes along with the video classes. Alright, so that is only the testing part over here. So you can join the test series if you just want to join the test series and you want to test yourself. Alright, and if you are literally buying them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, that is a good part. And you should call us so that all your queries regarding these packages should be resolved. Alright, now let's do it. Let's study the work, power, energy. उसका जो revision हमें करना है वो आज हम करते हैं. Alright, but before that, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. रिविजन बहुत 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 ज़रूरी है. मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ that revision is the most important thing because हम लोग इतने ज़्यादा you can say इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं कि भाई एक बार तुमने पढ़ लिया और छिटाक से तुमको याद हो गया. ऐसा नहीं होता. ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चों के साथ होता है. That is why if you are not the one with the good intellectual thing कि भाई तुम्हें एक बार में ही याद हो जाए, तो फिर तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है. And you can reach up to that level. Literally you can do that. You can increase your brain power. You can do again and again revision. You will be studying again and again, doing all the problems and all. Right? ये अगर आप करते हैं, then you are capable of reaching up to the first, you can say, rank or position. Alright, and that is the main thing. You should not doubt yourself. You just need to do the hard and the smart work only, and that is how you are going to get up to the first position. You got that? ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम्हें फर्स्ट टाइम एक बार पढ़ लिया, याद हो गया, बस अब हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा क्योंकि हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. ऐसा नहीं होता है. You need to revise it again and again. You have to do some work to get up to that position. Got that? So that is why we are going to study work also. हालांकि ये work physics का work is totally different, but still you need to work hard, you need to work smart, and then only you are going up to the first position. Got that? चलिए, तो हम work को जो है बताते हैं.
वर्क हम लोगों ने जो रियल लाइफ में सीखा था वो क्या सीखा था भाई, रियल लाइफ में तो हर काम वर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ईट, दैट इज अ वर्क फॉर मी. ठीक है, इफ आई स्टडी, आई रीड बुक, दैट इज अ वर्क फॉर मी, राइट. एनीथिंग, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जिसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दिस इज वर्क फॉर अस. ऑलराइट, बट ये तो रियल लाइफ का वर्क हुआ. जो फिजिक्स में वर्क हुआ दैट हैज अ टोटल डिफरेंट डेफिनेशन. ऑलराइट, दैट इज कि भाई हम लोग जब वर्क की बात करते हैं तो देयर हैज टू बी अ बॉडी, there has to be someone who is applying the force. Alright, there has to be the force actually, and there has to be one important thing, that is the displacement. So देखो, जब तक ये पर्सन इस बॉडी को हिला नहीं पा रहा है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तब तक वो कोई काम नहीं कर रहा है. बट जैसे ही वो इसको डिस्प्लेस करेगा, उसने काम कर दिया है, एंड नाउ वी कैन से इन फिजिक्स, नाउ अब जो है वर्क हो चुका है. गॉट दैट? वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज ऑफ अ फोर्स. ठीक है, अगर फोर्स नहीं होता है लेट्स से, सो देयर इज नो वर्क. अगर लेट्स से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देयर इज नो वर्क इन फिजिक्स. ऑलराइट, तो अगर हम फिजिक्स में वर्क की बात करते हैं तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम डिस्प्लेसमेंट, देयर हैज टू बी सम फोर्स, ऑलराइट, एंड देन देयर हैज टू बी सम मूवमेंट. ठीक है, तो अगर आप दीवार को धक्का मारेंगे और पूरे दिन धक्का मारते रहेंगे तो भी दीवार नहीं हिलेगी. ठीक है, ये क्या हुआ, कोई काम नहीं हुआ. फिजिक्स में हम बोलेंगे कोई काम नहीं किया है. ठीक है, हालांकि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तुम्हें ग्लूकोज पीने की जरूरत पड़ रही है, मगर फिर भी फिजिक्स में माना जाएगा कि तुमने कोई काम नहीं किया है. ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में जो कंडीशंस हैं वर्क को स्पेसिफाई करने के लिए, वर्क को मानने के लिए, बताने के लिए कि भाई वर्क है, एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इसके लिए दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन कि भाई कोई ना कोई फोर्स वहां पर एक्ट होना चाहिए बॉडी के ऊपर. सेकंड, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, मतलब उसका जो पहले वाला पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है दैट शुड बी डिफरेंट, चेंज होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए ताकि आप बोल सके कि भाई फिजिक्स में काम कर दिया गया है. ठीक है, चलिए डेफिनेशन पे आते हैं. तो देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स इज अप्लाइड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन अदर देन 90 डिग्री ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट. तो देखो, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, और वो बॉडी 90 डिग्री पे डिस्प्लेस नहीं हो रही है, लेट्स से फोर्स जो है वो इस तरीके से है. ठीक है, फोर्स इज लाइक फ्रॉम दिस डायरेक्शन, बट बॉडी डिस्प्लेस हो रही है नीचे. इफ दैट इज हैपनिंग दैट मीन्स देयर इज नो वर्क. फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी नीचे जा रही है, दैट तब हम ये बोलेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय दिस फोर्स. ऑलराइट, दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द कंडीशन यू नीड टू नो. अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन अदर देन द 90 डिग्री, ऑलराइट, फोर्स के 90 डिग्री के अलावा किसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन ओनली यू आर एबल टू से दैट द वर्क इज बीइंग डन. ठीक है, फिर देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऑलराइट, एंड यहाँ इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट ऑफ द वर्क. बट वर्क जो किया गया है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में अलग वर्क किया गया है, इस डायरेक्शन में अलग वर्क किया गया है, ऐसा नहीं है. वर्क का मतलब है दैट हैज टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई आपने कोई किसी डायरेक्शन को फिक्स मान के नहीं किया. इट इज जस्ट लाइक अ डिस्टेंस. ठीक है, वर्क इज जस्ट लाइक अ डिस्टेंस, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है. ऑलराइट, फिर देखिए वर्क तब किया जाता है भाई जब एक बॉक्स को तुम ड्रैग करके लेके जा रहे हो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो तुमने उस बॉक्स को खिसका के डिस्प्लेस करके दूसरे पोजीशन पे लेकर जा चुके हो. सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड बिकॉज यू ड्रैग्ड इट, यू पुश दैट ऑब्जेक्ट, यू पुश दैट बॉक्स, तो मतलब तुमने फोर्स लगाया. तो द वर्क डन बाय यू विल बी, और द वर्क डन बाय द फोर्स यू हैव अप्लाइड विल बी द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स यू अप्लाइड. ऑलराइट, दैट वुड बी द वर्क डन. अब देखिए किस तरीके से मेजर करते हैं, दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग दो तरीके से लिखते हैं. ठीक है, इट कैन हैपन कि भाई तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके किसी और डायरेक्शन में, लेट इट बी बाय सम एंगल थीटा. ठीक है, किसी और डायरेक्शन में जो कि थीटा एंगल पर है, फोर्स से उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू,
आपको सिंपली ये याद रखना है दैट जो वर्क होता है और जो फोर्स होता है, ठीक है, वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दे कैन बी इनटू द सेम डायरेक्शन, दे कैन बी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और दे कैन बी एट सम एंगल थीटा, ऑलराइट। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो देखिए, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ये बीच में जो है थीटा एंगल ले रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं फोर्स, जो फोर्स का वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको काउंट करेंगे, एंड दैट वुड बी डी कॉस थीटा। समझे? तो यहां पर हमने फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कंसीडर किया है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे केस की, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट कि भाई इस डायरेक्शन में मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन बिटवीन दीज टू, तो यहां पर देखो ये है डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, but eventually you are going to get the same value, you are going to get the same value eventually, f d cos theta, force multiplied by the displacement and multiplied by the cos theta. Cos theta, ये जो theta है that is the angle between the force and the displacement, alright, that is the thing you need to know about work. Now let's go ahead, हमने 3 cases जो हैं पढ़े थे वर्क की कंडीशंस में। क्या होगा, हम लोग थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे, हम थीटा की वैल्यू को सबसे पहले 0 रखते हैं, थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होता है 1 एंड यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन। इससे हमें पता चलता है whenever the force and the displacement are in the same direction you are going to get the maximum work done. फिर देखिए केस सेकेंड, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, whenever the force is perpendicular to the displacement there is no work done, you are going to get the 0 work done every single time. So the theta is 90 degree here, all right. फिर देखिए force is opposite to displacement here, theta is equals to 180 degree. So f d minus 1, यहाँ पे cos 180 degree is minus 1, that means जो displacement है और जो force है, displacement अगर इस direction में है तो force इस direction में apply हो रहा है, right? That is the main thing. तो हम लोग इसे बोल सकते हैं that totally opposite 180 degree and that is the reason कि यहाँ पे तुम्हें negative work done मिलेगा, negative work done मिलेगा, ठीक है, मतलब सबसे मिनिमम वर्क डन मिलेगा। सो देयर आर द 3 कंडीशन। अगर तुम्हें पता करना है भाई तुम्हें चाहिए 0 वर्क डन, व्हाट यू नीड टू डू इज you need to place the force perpendicular to displacement if you want to do the maximum work done। तो क्या करना होगा, आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रखने होंगे। इफ यू वांट द वर्क टू बी मिनिमम, what you need to do, you need to place them opposite to each other, all right, that is the 3 conditions we have discussed। अब देखिए यूनिट्स में देखिए वर्क डन की जो यू कैन से फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम कॉस थीटा नहीं ले रहे बिकॉज कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, थीटा का जरूर यूनिट होता है बट वो कॉस के साथ है, दैट इज व्हाई देयर इज नो यूनिट ऑफ दैट। अब देखो सीजीएस सिस्टम में अगर हम वर्क डन की यूनिट देखेंगे तो दैट इज अर्ज, दैट इज डाइन इनटू सेंटीमीटर। बढ़िया सी डेफिनेशन हमने इसकी देखी थी कि भाई अगर हम 1 डाइन का वर्क कर रहे हैं और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फोर्स की वजह से, 1 डाइन का हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, सो यू आर गोइंग टू गेट 1 अर्च वर्क डन, ऑलराइट। एंड इन ऐसे सिस्टम द यूनिट इज जूल, इट इज सेम एज एनर्जी, ठीक है, वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज टोटली सेम एज द एनर्जी बिकॉज वर्क डन इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए 1 जूल का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि भाई अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एंड 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, देन यू कैन से द वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है। फिर देखिए रिलेशन बिटवीन द जूल एंड द अर्ग, तो देखो जूल और अर्ग में 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग, बट यू नीड टू रिमेंबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम, ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है बिकॉज अगर ये आपने रिमेंबर कर लिया तो आप डेरिवेशन खुद कर सकते हैं एंड यू गेट अप टू द थिंग दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ, ऑलराइट। फिर देखो हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क देखा था। अब देखो रिमेंबर जब हमने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था तो उस टाइम पे जब हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, राइट, तो उस वक्त हमने फोर्स के बारे में भी पढ़ा था एंड वी टॉक्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स।
तो अगर आप वो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स यूज कर लेते हैं देन यू कैन गेट द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क डन। कैसे, देखिए CGS में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज ग्राम वेट सेंटीमीटर। तो ये जो ग्राम वेट है ना, ये ग्राम वेट है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स यू कैन से। इसी तरीके से जो हमने पढ़ा था SI सिस्टम, सो ग्रेविटेशनल SI सिस्टम के अंदर जो फोर्स का यूनिट है दैट इज kg वेट, ठीक है। आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ वर्क डन इन SI सिस्टम, ठीक है। फिर आप ये कंडीशन लर्न कर सकते हैं, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर दैट इज द वर्क डन, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू 981 अर्थ एंड 1 kg वेट मीटर इज इक्वल्स टू 9.81 जूल्स, ठीक है। ये आप रिलेशन याद कर सकते हैं। फिर देखिए 3 तरीके के वर्क डन है भाई, ठीक है। आप पॉजिटिव ले सकते हैं, आप नेगेटिव ले सकते हैं और आप जीरो ले सकते हैं वर्क डन, ठीक है। तो हमने जो 3 केसेस देखे थे वही थोड़ा बहुत डिटेल में है। सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वर्क डन? You are going to get the positive work done only when you are going to get the displacement multiplied by the force in the direction of the you can say displacement। कैसे? क्योंकि देखो अगर किसी एंगल पे ये फोर्स है, ठीक है, लेट्स से कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो किसके डायरेक्शन के अलोंग होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसकी वजह से तो कोई वर्क डन नहीं होगा। सो ओनली वर्क डन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, and that is why FD cos theta you are going to get the positive work done. So whenever the this theta is in between 0 to 90 degree, you are going to get the positive work done in these condition, ठीक है। बिल्कुल यही हमने, जैसे आप देखिए लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड्स बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स, अगर आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और किसी वेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है बाय द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में उसको उठा रहे हो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। उसी तरीके से आता है नेगेटिव वर्क डन। अब देखिए नेगेटिव वर्क डन के लिए हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल होना चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। सो देखो अगर ये जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑलराइट, एंड लेस देन 180 डिग्री, ये थीटा है। अब इस थीटा की वजह से ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल अगेन एक हॉरिजॉन्टल। ये जो है इसका जो परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल जो इसका कंपोनेंट है अगेन वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया है, तो वो भी कोई काम नहीं करेगा। सो दिस एफ साइन थीटा विल नॉट डू एनी वर्क, only work is going to be done by the horizontal component which is opposite to the displacement, and that is why you are going to get the negative of the you can say the work done। ऑलराइट, तो तुम्हें नेगेटिव वर्क डन क्यों मिलने वाला है? माइनस का एफ कॉस थीटा जो आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज गोइंग टू डू वर्क, ठीक है। उनके बीच में 180 डिग्री है, दैट इज द रीजन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये पता चला व्हेनेवर द थीटा द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल है इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इट इज स्मॉलर देन 180 डिग्री देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव वर्क डन। ऑलराइट, इसके काफी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो जो फोर्स अप्लाइड करेगी स्प्रिंग दैट वुड बी नेगेटिव बिकॉज इट वुड बी अपोजिट, ऑलराइट। अब आते हैं जीरो वर्क डन। सो जीरो वर्क डन की कंडीशन वही है जब कभी भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में आप देखिए अगर आप किसी थ्रेड को नहीं आप किसी स्टोन को थ्रेड से पकड़ के ऐसे रोटेट करवा रहे हो, जोर जोर से उसको घुमा रहे हो, ठीक है। सो इफ़ यू डू दैट, अगर बहुत जोर से इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? जो पत्थर है वो सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहा है ना। अगर आप उसको ऐसे रोटेट करवा रहे हो तो पत्थर क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है, वो रोटेट कर रहा है, बस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली एवरी सिंगल टाइम जो फोर्स होगा इसके ऊपर, यहाँ पे जो स्टोन है इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो तो किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ, बट इट विल मूव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेगा। सो इन दैट कंडीशन यहाँ पर
जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द जीरो वर्क डन बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री। ऑलराइट, फिर देखिए टाइप्स ऑफ वर्क में हमने एग्जाम्पल्स में देख रहा है जीरो वर्क डन के लिए कि कोई भी बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कोई बॉडी, लेट्स सी आई एम वॉकिंग, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ ना, मतलब आई एम वॉकिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट, बट जो वेट है मेरा दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, मेरा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस फोर्स की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो वेट है, ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है मुझ पर, वो कोई वर्क नहीं कर पा रहा है, सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन मी व्हेन आई एम वॉकिंग हॉरिजॉन्टली इज जीरो। Alright, but whenever I'm falling down it will be positive, whenever I will be going up it will be negative, ठीक है। तो डायरेक्शंस का खेल बस इतना सा ही है कि हमको डायरेक्शन की जगह पे क्या समझना है कि भाई कौन से एंगल पे कितना फोर्स लग रहा है, भाई ये सब हमें समझना है। Alright, फिर देखिए अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, आपको ग्राफ दे दिया गया बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन? You are going to calculate the work done by the area. The area under the force displacement curve gives you the work done. Positive होगा if it is above the x-axis, negative if it is below the x-axis. ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पूरा पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला नेगेटिव मिलेगा एंड इट विल बी पॉजिटिव अगेन, ठीक है। सो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज, द ग्राफ कहाँ है उसका, उसके बेसिस पे। ऑलराइट, फिर आते हैं नेक्स्ट दैट इज दी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखो इतने सारे हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी, अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट विल गिव यू अ कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट दी वर्क, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर एंड द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग, ठीक है, डिस्प्लेस हो रही है, तो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है, इट वुड डिपेंड ओनली द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ओनली, इट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, ठीक है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर जैसे पार्टिकल की वजह से उस पर, जैसे लेट मी टेल यू, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वो भी किया हुआ है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स का जब हम यू कैन से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फॉर अ होल साइकिल मीन्स द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम अ पोजीशन टू another position and then it is coming back towards a different path, from a different path towards the same initial point. So this would be a cycle, and whenever we talk about the work done for a closed cycle, for a closed path, you are going to get the zero work done over there by only the conservative force, not by the non-conservative, ठीक है। तो देखिए हमने इसके बाद जो है ये देखा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, तो हमने बॉडी को ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट तक लेकर गए, एच हाइट अबव हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई mgh जो है दैट इज द वर्क डन वी हैव टू डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बट अगर हम किसी और पाथ से लेकर जाएं, ठीक है, लेट इट बी कि भाई हम ए से पहले उसे सी तक लेकर जाएंगे, सी से डी तक लेकर जाएंगे, डी से ई तक लेकर जाएंगे, ई से बी तक लेकर जाएंगे। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी, ड्यूरिंग दिस होल जर्नी द वर्क डन इज सेम। सोचिए पाथ डिफरेंट हो गया, हम अलग रास्ते से उसको बॉडी को लेकर गए, even then the you can say you are going to get the same work done, mgh. So basically conservative forces की वजह से होने वाले जो work done हैं, those work done will not depend upon the path कि आप कौन से रास्ते से बॉडी को लेकर जा रहे हो या किस रास्ते से आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो ये वो फोर्सेस होते हैं जिन ऐसे फोर्सेस जो अगर वर्क करेंगे तो उनका जो वर्क डन होगा दैट वुड डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप फ्रिक्शनल फोर्स में अगर पाथ चेंज कर देंगे बॉडी का, लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड यू चेंज द पाथ, पहले एक और पाथ से जा रहे थे, फिर हम दूसरे किसी पाथ से जा रहे हैं, बट दोनों पोजीशन सेम है, पाथ डिफरेंट है, तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट वर्क डन because the path is different and the work done by the non-conservative forces is depend on the path you choose. All right, that is the main thing. फिर देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
Work done by a conservative force in a round trip for the closed path, you are going to get it 0. But work done by a non-conservative force in a round trip is not 0. वहीं पर देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन इट्स पाथ. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन. बट नॉन कंजर्वेटिव के केस में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर दैट. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, दैट इज एनर्जी. तो बेसिकली व्हाट इज एनर्जी फॉर यू? एनर्जी इज समथिंग दैट वी लूज एवरी सिंगल डे एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, रात मतलब पूरा दिन का एंड हो जाता है व्हेन वी जस्ट गेट टायर्ड एंड ऑल, वी डू नॉट हैव एनीथिंग, एनी motivation and all or anything inside our body that is willing to do some work. All right, and that thing is what? That is the energy. So whenever you are having you can say a lazy being, and whenever you are feeling like not working at all, you are feeling tired, at that time you are having zero energy. All right, you are going to have zero energy. So देखिए, energy is something which can take you up to willing so that you can do some work. बेसिकली जो एनर्जी होता है एंड द वर्क डन आर टोटली सिमिलर एंड इक्वल टू ईच अदर. वी कैन से दैट बिकॉज एनर्जी होगी तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी होगी. गॉट दैट? तो जब कभी भी व्हेन यू फील वेरी मच यू नो willing to do some work, ready to do some, fully energetic, then you are going to have that energy. So basically if we talk about energy, it is something inside the body because of which is going to do some work done. All right. So let's talk about the definition. Capacity of doing work or total work done by a man or by an agent is called the energy of the man or the agent. Alright, इसके यूनिट CGS सिस्टम अर्ग है, SI सिस्टम में जूल है, इसे बोलते हैं. फिर देखिए हमने किलोवाट आवर को देखा था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, किलोवाट आवर में को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप 1 पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको एक्सेलरेट करोगे, देन द वर्क डन वुड बी दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द एनर्जी वुड बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देखो तुम्हारे आसपास बहुत एनर्जी अवेलेबल है, बहुत एनर्जी अवेलेबल है, मतलब आप सोच नहीं सकते डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यू आर गोइंग टू गेट एनर्जी एवरी सिंगल टाइम. फिर भी हमारे पास एनर्जी की कमी हो जाती है. रीजन इज यूजेबल फॉर्म में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू दैट सनलाइट आ रही है, अर्थ तक आ रही है, सो यू आर गोइंग टू गेट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वेन एवर सन इज गोइंग टू गिव यू द हीट एंड द लाइट एनर्जी. यू आर हैविंग दैट एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म. आप उस एनर्जी से अपना फोन कैसे चलाओगे, आप उस एनर्जी से अपना टेलीविजन, अपना फ्रिज एंड ऑल जो भी तुम्हें चलाना है, जो भी तुम्हें यूज करना है, उसको कैसे करोगे. सो यूजेबल फॉर्म में नहीं. एनर्जी बहुत है आसपास, तुम्हें बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी मिलेंगी, बट यूजेबल फॉर्म में नहीं है. दैट इज द ओनली रीजन वी आर हैविंग एन एनर्जी क्राइसिस. ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहली एनर्जी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अराउंड यू. पहली एनर्जी देखिए हीट एनर्जी, सन से मिलती है. जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तब आपको वो हीट एनर्जी मिलती है. ठीक है, फिर आप देखिए लाइट एनर्जी, लाइट आपको मिलती है, दैट इज द एनर्जी जो कि हमको सारी चीजें विजिबल करवा देती है. फिर देखिए साउंड एनर्जी, आई एम स्पीकिंग, यू आर गोइंग टू गेट द साउंड एनर्जी. तुम बोलते हो, मम्मी सुनती हैं, साउंड एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम यू टू योर मॉम्स ईयर्स. ऑलराइट, सो देखो फिर आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट के पास जो एनर्जी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी. फिर देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है व्हेन दे आर मूविंग एट ऑल, राइट. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कि केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है. फिर देखो केमिकल एनर्जी, इन इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर जो तुम बैटरी यूज करते हो उनके अंदर केमिकल्स फिल होता है, उन केमिकल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है. एंड देन जब आप उसे यूज करते हो वही एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट इज गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सन से मिलती है तुम्हें, राइट. फिर देखो न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट. तो सन के ऊपर जो इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, सन इतना हीट दे रहा है, इतना लाइट दे रहा है, because of these nuclear energy over there, because there is so much amount of vast energy over there. Nuclear fission fusion reactions are going on over there.
ठीक है। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हम यही तो काम करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज अराउंड यू, बट दे आर नॉन यूजेबल, दे आर नॉट यूजेबल फॉर्म में नहीं है। दैट इज द रीजन दैट वी आर हैविंग दैट एनर्जी क्राइसिस। और बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब सम इफ सम बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे तुम्हारा टेबल, अभी तुम्हारा टेबल बिल्कुल रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा ना, तुम उसके ऊपर आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, आराम से रुका हुआ है, बट जब आप उसे धक्का देने लगेंगे तो वो मूव भी करेगा। तो जब वो मूव करेगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब वो रुका हुआ है, आराम से रखा हुआ है, उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में जो उसकी स्टेट की वजह से, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है, उसकी वजह से जो एनर्जी उसके पास है, दैट इज दी मैकेनिकल एनर्जी। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से एनर्जी उसके पास है, दैट इज पोटेंशियल। If it is like because of the, you can say the state of motion, then it is the kinetic energy. ठीक है, चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बात करते हैं कि एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन देखेंगे अभी हम काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो हमने क्या किया, ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे रखी हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे रखी हुई थी, रेस्ट पे रखी हुई थी। फिर क्या किया, एक फोर्स ने आके उसे धक्का मारा और अब वो बॉडी वी वेलोसिटी से जाने लगी, ठीक है। तो बॉडी का वेलोसिटी जीरो से वी हो गया है और एस डिस्टेंस तक उसने ट्रैवल कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स वो कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाती हूँ, सो देखो यू स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, वाई? सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो देखो यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब देखो तुम्हें जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? वी स्क्वायर बाई टू ए, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। इसको रीअरेंज करके यू आर गोइंग टू गेट द वी स्क्वायर बाई टू ए। अब इस एस को उस वर्क डन वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। जो फोर्स है वो एम ए है, तो वर्क डन में देखो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए हमने क्या किया, फोर्स की जगह पे तो एम ए प्लेस कर दिया और एस की जगह पे वी स्क्वायर बाय टू ए प्लेस कर दिया। कैंसिल आउट करो, यू आर गोइंग टू गेट द वर्क डन एज द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द बॉडी। उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी है, वो कैसे आई? बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स, ऑलराइट। So this is the expression for the kinetic energy, half mv square. v is the velocity, m is the mass over here. ठीक है, चलो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, जीरो वेलोसिटी, तो इसका मतलब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, ठीक है। चलिए अब हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स में मास और वेलोसिटी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज्यादा बॉडी का वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। फिर देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ये बताती है रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो बताती है कि भाई दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जितने भी फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, वो किसका सम होगा, किसके बराबर होगा? दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस ऑन द बॉडी, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ हमने देखा था। हम लोगों ने क्या किया कि भाई एक बॉडी यू वेलोसिटी से पहले से चल रही थी, ठीक है, फोर्स आया, उसने अपना वर्क किया, जिसकी वजह से अब बॉडी का वेलोसिटी हो गया है v और डिस्टेंस हो गया है s। अगेन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ma है, s डिस्टेंस है, अगेन s यहाँ पर जो है एक हमने रिप्लेस किया, एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस किया, दैट इज फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अगेन हम उसमें पुट करेंगे, एक ही जगह पर पुट करेंगे फॉर्मूले में, you are going to get the work done as mv square by 2 minus mu square by 2 and that is the kinetic energy का change. This is the final velocity, तो ये final kinetic energy. Initial velocity, initial kinetic energy. This is the change in the kinetic energy and this is equal to the work done. So force ने जो मतलब जो work done किया, that is equal to the change in kinetic energy inside the body. Alright, so that is the main thing कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताएगी? वो बताएगी कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज है एंड दैट वुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाय दैट फोर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? ये इक्वेशन है, ठीक है। ये है, यू कैन से देखो वर्क डन को है
हमने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो अगर आप फोर्स और एनर्जी का रिलेशन देखना चाहोगे एट दैट टाइम, वर्क एनर्जी से फोर्स और एनर्जी का रिलेशन देखोगे तो तुम्हें ये रिलेशन मिलने वाला है। राइट, कुछ भी नहीं करना इसमें, हमें बस रीअरेंज करना था। चलिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये काफी जरूरी है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे और बहुत क्विकली ये सॉल्व हो जाते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक है, और मोमेंटम हम जानते हैं mv होता है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करते हैं, mv की जगह पर p रखने की कोशिश करते हैं, मोमेंटम रखने की कोशिश करते हैं। तो देखो mv² में क्या कर रहे हैं, अब m ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखो m², ठीक है, और एक m आ गया है और v², तो m² v² जो हमें वैल्यू मिल रहा है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। तो यू आर गोइंग टू गेट 1/2m स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। और राइट, फिर देखिए ग्राफ्स हम लोगों ने देखे थे, 3 तरीके के ग्राफ देखे थे हम लोगों ने इन रिलेशन बिटवीन आप क्या कांस्टेंट कर रहे हो। देखो, सबसे पहले अगर आप मोमेंटम कांस्टेंट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्स ऑफ द मास, ठीक है, 1/m रेसिप्रोकल ऑफ द मास यू कैन से। तो देखो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, कर्व्ड ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी बॉडी का कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो √m के इक्वल, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ कर्व ओवर हियर, ठीक है। अगर आप मास कांस्टेंट कर देते हैं तो जो मोमेंटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ ओवर हियर, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए आर गोइंग टू गेट डिफरेंट शेप्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा क्या है कि भाई कोई भी एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप एनर्जी को क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो, नहीं, ये तो अपन सोचते ही नहीं। अपन लोग को सिर्फ ये सोचना है कि भाई कब कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है और अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 2 बॉल्स रखी हुई है, 1 और 2, हमने 2 बॉल्स ले ली। आपने एक बॉल को उठाकर किसी ऊंची जगह पे रख दिया, h हाइट पे ले जाकर रख दिया, आपने उस पर कुछ वर्क किया, राइट, आपने उसको उठाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपने कुछ वर्क किया और वही वर्क उसके अंदर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे सेव होगा क्योंकि आपने उसका हाइट चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब आप बॉल को उठा के वहां रख दोगे पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। फिर अगर बॉल गलती से नीचे गिर जाती है और नीचे आते ही वो ट्यूब सेकंड बॉल को हिट कर देती है, ठीक है, हिट करने पे क्या होगा, मूव करने लगेगी। वो कैसे मूव करी, वो क्या था उसके पास था पोटेंशियल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो गया था काइनेटिक एनर्जी में, एंड दैट इज व्हाई वो बॉल सेकंड वाली टकराते ही मूव करने लगी। रीजन इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो कभी भी हम किसी पोजीशन के बेसिस पे कोई एनर्जी अगर किसी बॉडी में देख रहे हैं तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। व्हेनेवर वर्क इज डन जिसकी वजह से जो बॉडी है उसका हाइट चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जो वर्क डन है वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे सेव हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी के रुके रहने की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से हो उसके पास होती है। तो यू आर गोइंग टू गेट सम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहली तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट, एंड दूसरी आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ शेप। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप स्प्रिंग को स्क्वीज आप दबा रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक नहीं होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका शेप चेंज हो गया, राइट। वो क्या करेगी, जो आपने वर्क डन उसको दबाने में किया ना वही एनर्जी में सेव हो जाएगा, कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा, एंड क्या होगा उसके बाद जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो हिलेगी। रीजन, इट हैज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग में होती है, सेफ होती है, दैट इज ½ kx², जहां पर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लेंथ, यू कैन से, जितना आपने उसको कंप्रेस किया है तो कितना चेंज इन लेंथ आया, दैट इज द x ओवर हियर, ठीक है। अगर आप स्ट्रेच भी करते हैं तो भी सेम बातें आती है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h, अगर आप किसी बॉडी को एक पोजीशन से किसी हाइट वाली पोजीशन पे लेके जा रहे हो तो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, आप वर्क डन करके जितना एनर्जी उसको दे रहे हो, उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, दैट इज बीइंग स्टोर्ड एज द वर्क डन, है ना, और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज mgh ओवर हियर, ठीक है।
हमने पूरा अच्छे से उसको वो किया है, जो हम कह सकते हैं कि डिराइव किया था। वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है, ठीक है, वर्क डन जो कि चेंज हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है उस बॉडी में बेसिकली, ठीक है, ये होना चाहिए, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो आप ग्रेविटी के अपोजिट लेकर जा रहे हो, तो आप जितना काम कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दैट बॉडी, ठीक है, दैट इज mgh ओवर हियर। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन मतलब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो भाई क्रिएट नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉयड नहीं हो रही है, सिर्फ इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है बस। सो व्हेनेवर देखिए जब कोई बॉडी गिरती है, फॉल होती है, ठीक है, जब वो गिरती है, फॉल होती है, तो क्या होता है, जब वो ऊपर हाइट पे थी तो उसके पास सब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, पूरी की पूरी एनर्जी उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्यों, क्योंकि वो रुकी हुई है, काइनेटिक तो जीरो है। फिर जैसे वो नीचे जाती है तो नीचे जाते जाते क्या हो रहा था, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज हो रही होती है और वो नीचे जा रही होती है, जा रही होती है, जैसे ही वो जमीन से टकराने वाली होती है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जमीन तक पहुंच गई, ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन्स होता है। फिर आप देखिए जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, तो आपने क्या किया, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, तो आपने पहले उसे काइनेटिक एनर्जी दे दी, आपने उसे पहले काइनेटिक एनर्जी दे दी, फिर वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो ऊपर जाके तो वेलोसिटी जीरो, तो मतलब सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर देखिए स्टेटमेंट, लॉ ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर कीपिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व, इट इज गोइंग टू बी कंजर्व, ऑलराइट। तो देखिए हम डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी को चेंज करते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साउंड में वाइब्रेशन से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, आप टू स्टोन्स को रब कर रहे हो तो फायर एनर्जी में, जो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, राइट। हीट एनर्जी को अदर फॉर्म में कर रहे हैं जैसे कि हीट इंजन्स, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हीट एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। साउंड एनर्जी को आप जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में भेजते हैं, फॉर एग्जांपल जब वो वायर्ड के थ्रू व्हेन वी कॉल, लैंडलाइंस में जब हम कॉल करते थे तो हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक पल्सेस के उसमें चेंज हो जाती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती थी, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा फैन रोटेट करता है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। उसी तरीके से बल्ब ग्लो करता है, सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड द लाइट एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे। मैग्नेटिक एनर्जी देखो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है, तभी तो वो इस निडल को मूव करवा पा रही है, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ये यूज होता है। केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर है वो देखो लाइट और बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, सन के ऊपर जितने भी हीट एंड लाइट वहां पर आपको मिल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में सन की वजह में हीट एंड लाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में हमने ये देखा था कि जब पूरी जर्नी होती है, व्हेनेवर अ बॉडी इज गोइंग अप, गोइंग कमिंग डाउन, तो इस दौरान जो चेंज होती है एनर्जी वो कैसे चेंज होती है ये हमने देखा था। बट एक्चुअली में एनर्जी सिर्फ चेंज हो रही है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल नहीं रही है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने चेकआउट किया था कोई बॉडी जब फॉल कर रही है तो टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम के टाइम पर, मतलब जब बॉडी इज गोइंग फ्रॉम द ए पोजीशन टू सी पोजीशन, सारी की सारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है और वो कांस्टेंट है, मतलब दैट एनर्जी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल ओवर देयर, mgh ही है। तो देखो ए पोजीशन पर बिकॉज ऑफ द हाइट h इट इज mgh एनर्जी, बी पोजीशन पर देखो हमने पूरा कैलकुलेट किया एंड वी आर गोइंग टू गेट द mgh हियर अगेन, सी पोजीशन पे भी हमें वापस से mgh ही मिल रही है। तो पूरे टाइम में जो तीनों टाइम में एनर्जी है, टोटल एनर्जी सेम है, ठीक है। तो देखिए ए पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है, फिर जैसे जैसे बी पोजीशन की तरफ गए पोटेंशियल कम होते गए, काइनेटिक बढ़ती गई, फिर जैसे जैसे हम सी पोजीशन तक आए पोटेंशियल आते आते जीरो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द होल जर्नी इज सेम, दैट इज द मेन थिंग, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद जो हमने देखा था
दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम का केस भी बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो जब ये यहाँ पर रहता है, कोई बॉब यहाँ पर रहता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम दैट इज द मीन पोजीशन, फिर आपने पकड़ के उसको ले गए, आप बी पोजीशन तक लेकर गए, तो यू डिड सम वर्क, और यही वर्क डन बिकॉज ऑफ इट्स हाइट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही अब आप इसे छोड़ देंगे वैसे ही ये वापस एक ही तरफ जाएगा एंड सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, तो इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इनर्शिया है, सो इट विल नॉट स्टॉप हियर, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगेन वो एच हाइट तक जाएगा। अब जैसे ही वो एच हाइट तक जाएगा, मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगेन इट विल कम डाउन एट द ए पोजीशन। सो इस तरीके से कन्वर्जन जो है काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में, ये कन्वर्जन चलते रहता है। ठीक है, वो जो पूरा सिंपल पेंडुलम का केस है वो इस तरीके से चलता रहता है, ये हमने देखा था हम। और राइट, वी डिड सम क्वेश्चंस एंड देन कम्स टू द पावर। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है कितना काम हम कितने टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर पावर। पावर को हम सिंपली लिख देते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट फैक्टर्स ऑन इट डिपेंड इज वर्क डन एंड द टाइम टेकन। हाउ यू कैन कैलकुलेट पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, वॉट, ठीक है, वो यूनिट होती है पावर की, एसआई यूनिट होती है वॉट। इस वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके इक्वल होता है। और ज़्यादा बड़ी यूनिट जो पावर की होती है, किलो वॉट होती है, मेगा वॉट होती है, गीगा वॉट होती है एंड हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जनरली इंजन्स की पावर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज 746 वॉट। फिर देखिए पावर, अगर आप किसी बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, एक बॉडी रेस्ट पर है, आप उस बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, तो आप पावर कैसे लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। फिर देखिए किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए आप कितना जो पावर जो है आपको चाहिए, माइनस ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। पावर किसी भी बॉडी को पुल करने के लिए, एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टी। पावर किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी, माइनस एम जी एच बाय टी। पावर ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें उसको यूज कर सकते हैं उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कि आप अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखिए हम किसी करंट को किस तरीके से लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, भाई कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो चार्ज को देखिए आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। उसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वर्क डन बाय चार्ज, कितना वर्क डन कर रहे हैं कितने चार्ज को लेकर जाने के लिए। ठीक है, सो वर्क डन कैन बी रिटन एज द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इस चार्ज को हम रिप्लेस कर रहे हैं आई टी से एंड दिस वर्क डन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड एट एनर्जी, सो एनर्जी वुड बी द वी आई टी। ऑलराइट, दिस वुड बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर हेयर और यही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, लेट मी टेल यू। इलेक्ट्रिक पावर कितना, मतलब कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। उसका फॉर्मूला होता है वी आई। ऑलराइट, इसी वी आई से आप पावर के दो फॉर्मूले और लेट मी से दैट अगेन, ये जो फॉर्मूला हमने पावर का लिया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट, और इसी फॉर्मूले से आप दो और फॉर्मूले डेरिवेट कर सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ। अब अगर ओम्स लॉ जो है V इक्वल्स टू आई आर, उसमें अगर आप V को है ना रिप्लेस करें आई आर से, तो यू आर गोइंग टू गेट आई स्क्वायर आर। और अगर आप ओम्स लॉ में यहाँ पर I को रिप्लेस करें V बाय आर से, तो आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तीन फॉर्मूले आपको पावर के मिल गए हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो हम लोग जो घर में हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो हम किस यूनिट में यूज करें, किलोवाट आवर में। ठीक है, पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। ऑलराइट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वन यूनिट बोलते हैं। फिर देखिए जो 1 किलोवाट आवर है दैट इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स। ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो बिल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए आपको क्या करना है, आप जो भी इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं उसका पावर
आप उसको कितने अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं वो, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय 1000, दिस वुड बी द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका जितना पर यूनिट जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए डिस्टिंक्शन विद एनर्जी। देखिए एनर्जी जो होती है वो जनरली ये बताती है कि भाई कितना वर्क डन हो सकता है, राइट, बट पावर जो है वो ये बताती है कितना जल्दी फास्टली काम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मैन जो होगा ना वो सेम काम को बहुत जल्दी कर देगा, लेस टाइम में कर देगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। बट कोई वीक पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसी काम को बहुत देर में करेगा क्योंकि उसके पास कम एनर्जी होती है। ठीक है, सो डिस्टिंक्शन विद एनर्जी का मतलब एनर्जी इज इनसाइड द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन इनसाइड द पर्सन, राइट, एंड द पावर इज कि वो कितने टाइम में उस काम को कर सकता है, उसके पास कितना एनर्जी होगा तो वही उतने उसके पास ज्यादा पावर होगा, राइट। सो देखिए हमने क्या किया है, पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्लास में वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस, हम सब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू डू प्रिपेयर फॉर दैट, revise this chapter once again, ठीक है, so do it as your homework, alright, I'm going to end the chapter here, lecture here. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.